Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to dear students and viewers, and welcome to my class Elementary Education for MAD course code 0826, unit number 2. Unit number 2 is about child development at elementary level. First of all, I am defining the child development. Child's development is divided into 3 stages: early childhood, middle childhood, and adolescence. Early childhood is a time of tremendous physical changes across all areas of development. अर्ली चाइल्डहुड में जो चिल्ड्रन हैं उनके जितने भी एरियाज़ हैं जिनको डेवलप होना है वो सब फिज़िकली चेंज हो रहे होते हैं. Middle childhood is an important time when children develop foundational skills for building healthy social relationships and learn roles to prepare them for adolescence and adulthood. मिडल चाइल्डहुड जो है दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स जो हैं या चिल्ड्रन जो हैं वो एक फाउंडेशन उनकी बन रही होती है, उनकी बुनियाद बन रही होती है. जितनी भी उनके स्किल्स हैं सोशल रिलेशनशिप के हवाले से ख़ास तौर पे, तो वो इसमें बेस बन रही होती है और प्रिपेयर हो रहे होते हैं अपने एडोलेसेंस और एडल्टहुड के लिए. Adolescence is the period following the onset of puberty, during which a young person develops from a child into an adult. Adolescence इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये वो स्टेज है जिसमें चिल्ड्रन जो है वो अपने आप को एक यंग पर्सन जो है एक उससे अडल्ट में ट्रांसफ़र हो रहा होता है. Physical and motor development of students at elementary level. Early child development encompasses physical, motor, cognitive, and social emotional development. Physical development. Physically, growth is quite dramatic and rapid during infancy. जो इन्फेंसी हमारा पीरियड ऑफ डेवलपमेंट है इसमें फ़िज़िकल डेवलपमेंट जो है वो बड़ी तेज़ी से हो रही होती है. मोटर डेवलपमेंट इंक्लूड्स ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट. ठीक है, मोटर डेवलपमेंट भी साथ साथ हो रही होती है. मोटर डेवलपमेंट हम कहते हैं जिसमें जो चाइल्ड है उसका क्रॉलिंग करना, चलना, हाथ पांव हिलाना और चीज़ों को पकड़ना वगैरह शामिल है. ग्रोस मोटर refers to physical skill that use large body movements involving the entire body, while fine motor refers smaller and more precise movements. ठीक है, इसमें ग्रॉस मोटर में हमारी जो मूवमेंट्स हो रही होती हैं मोटर मूवमेंट्स वो पहले से ज़्यादा प्रिसाइज हो जाती हैं, पहले से ज़्यादा परफेक्ट हो जाती हैं. फाइन मोटर skills that require hand-eye coordination. By ages 2 to 3 years, children can mold clay into rough shapes, build towers out of blocks, and scribble with a crayon. फाइन मोटर स्किल्स में जो है ये 2 to 3 ईयर्स की एज होती है जिसमें चिल्ड्रन जो हैं वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो हाथों से चीज़ों को बना सकते हैं, तोड़ सकते हैं और रीमोल्ड कर सकते हैं. जैसे कि क्ले है तो उसकी शेप्स बना लेंगे, अगर उनको ब्लॉक्स दिए जाएं तो वो उसका टावर या कोई और चीज़ भी बिल्ड कर सकते हैं. एलिमेंट्री लेवल पे जो हमारी पर्सनैलिटी और सोशल डेवलपमेंट है इसके लिए
हमें जो थेरीज दी गई हैं उसमें सबसे जो लिस्ट में ऊपर है वो पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है. Piaget's theory of cognitive development, also known as a developmental stage theory, was created by the Swiss developmental psychologist Jean Piaget, 1896 to 1980. This theory is very important for cognitive development of children or students. It is a comprehensive theory about the nature and development of human intelligence and deals with the nature of knowledge and how human acquire, construct and use this knowledge. ठीक है, ये इस बारे में है कि स्टूडेंट्स जो हैं उनकी ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है उसको कैसे डील करते हैं और किस तरह से उनका नॉलेज बढ़ता है और वो कैसे उसको सीखते हैं और कैसे उसको यूज़ करते हैं. Piaget believed that cognitive development was an organization of mental process that result from biological maturation and environmental experiences. Piaget का ये बिलीव है कि बायोलॉजिकली जैसे जैसे मेच्योर होते हैं स्टूडेंट्स या चिल्ड्रन और जैसे वो एक्सपीरियंस करते हैं इन्वायरमेंट का, वैसे ही उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो बढ़ती है. Cognitive and intellectual development. Conservation. Conservation is a person's ability to understand that certain physical characteristics of objects remain the same even if their appearance has changed. Conservation mean कि इस चीज़ की एबिलिटी, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी एक स्टूडेंट में, एक जो हमारा चाइल्ड है उसमें आना, कि जो चीज़ जो ऑब्जेक्ट हमारे सामने नहीं है वो उस फिर भी एग्जिस्ट करता है. क्योंकि स्टार्टिंग में जो हमारे बच्चे हैं, चाइल्ड हैं, वो इस चीज़ को, जो चीज़ उनके सामने होती है सिर्फ उसी को रियल समझते हैं, और अगर वो चीज़ उनके सामने से हटा दी जाए तो वो ये समझेंगे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती. ट्रांसफॉर्मेशन. Transformation is a person's ability to understand how certain physical characteristics change while other remain the same in a logical cause and effect sequence. In early childhood, children do not readily understand how things can change from one form to another. जैसे कि एक क्ले है, तो स्टूडेंट्स को अगर कुछ बना के दिखाया जाए तो उनको इतनी एबिलिटी नहीं होगी, वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ को कैसे मोल्ड किया जा सकता है या उसको कैसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है. एगोसेंट्रिज्म. Egocentrism is the ability to see the world by someone else's point of view. In early childhood, children have egocentrism. They explain situations from their own perspective and understanding. ईगोसेंट्रिज्म का मतलब है कि अगर एक जो चाइल्ड है वो अगर डॉग से डरता है, फॉर एग्जांपल वो अगर डॉग से डरता है तो उसको ये वो अपनी ईगोसेंट्रिज्म में होगा, वो समझेगा कि जो अगर मैं डॉग से डरता हूँ तो जितने भी बच्चे हैं वो तमाम डॉग से डरते हैं. जो वो अपने आप को सेंट्रल रखते हुए अपने आइडियाज़ को जो है वो सेंट्रलाइज करता है ओवरऑल वर्ल्ड पे. Factors that affecting children cognitive development. There are many factors that affect the students cognitive development, but इनको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. बायोलॉजिकल में सेंस ऑर्गन्स हैं, इंटेलिजेंस, heredity, maturation, and environmental factors that affect the children cognitive development are learning opportunities, economic status, play, family and society. जिस तरह का हमें अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी स्टूडेंट्स को, उसी तरह उनकी डेवलपमेंट होगी, और जो उनका इकोनॉमिक स्टेटस होगा अपनी सोसाइटी में वो भी रोल प्ले करेगा स्टूडेंट और चिल्ड्रन की कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे. प्ले के उनको कितने मौके दिए जाते हैं, वो कितना प्ले करते हैं, उससे भी सीखते हैं स्टूडेंट्स. और फैमिली एंड सोसाइटी, ऑल्सो
affect the cognitive development of the children. Theories of personality development. There are many theories of personality development of children, but we are discussing about the three main theories. First one is Piaget theory of cognitive development, Kolber theory of moral development, and Erickson's theory of psychosocial development. जीन प्याजे जिसकी हमने पीछे बात की थी, इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के स्टेप्स बताए थे कि कितने इयर्स का, इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था और बताया था कि कितने ईयर का जो चाइल्ड है वो किस काबिल हो जाता है. तो जीन प्याजे ने 4 स्टेजेस बताए. फर्स्ट स्टेज जो है वो स्टार्ट होता है 0 टू, और 0 से स्टार्ट होकर 2 इयर्स तक जाता है, जिनको हम सेंसरी मोटर कहते हैं. इस स्टेज में जो चाइल्ड है वो अपने सेंसेस को यूज़ करता है, और जैसे टेस्ट करना, टच करना, और हेयरिंग है और सीइंग है. इसके अलावा मोटर एक्टिविटीज़, क्रॉलिंग करना और चलना, और इसके अलावा जो है चीज़ों को पकड़ना वगैरह. तो इसमें क्या स्पेसिफिकेशंस हैं? यूजेस सेंसेस एंड मोटर स्किल्स आइटम्स नोन बाय यूज़, और इसको हम ऑब्जेक्ट परमानेंस लर्नड कहते हैं. ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस को वो लर्न करता है कि एक चीज़ जो हमारे सामने है, अगर उसको हाइड कर दिया जाए तो उसको लगेगा कि वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती. सेकेंड स्टेज स्टार्ट फ्रॉम 2 years एंड एट 6 years ऑफ एज. इसको प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, और इसमें जो चाइल्ड है उसकी डेवलपमेंट होती है सिंबॉलिक थिंकिंग. वो सिंबॉलिकली चीज़ों को सोच सकता है. अगर उसको हम सिंबल्स बताएंगे तो वो अपने माइंड में उस चीज़ को बना सकता है, सोच सकता है. लैंग्वेज यूज्ड, इस लेवल पे वो बोलने के काबिल हो जाता है, अपनी लैंग्वेज यूज़ करना स्टार्ट कर देता है. ईगोसेंट्रिक थिंकिंग, और जैसे हमने पीछे पढ़ा कि ये ईगोसेंट्रिक हो जाता है. वो समझता है कि अगर मैं किस डॉग से डरता हूँ तो बाकी जितने भी लोग हैं इस दुनिया में वो सब डॉग से डरते हैं, और ये डॉग जो है ये डरने की चीज़ है. इमेजिनेशन करना आती है उसको. एक्सपीरियंस ग्रो करता है. चाइल्ड डी सेंटर्स. एंड द थर्ड स्टेज स्टार्ट फ्रॉम 7 years and end at 11 years old, and this stage is called concrete operational. concrete operational में स्टूडेंट जो हैं, जो चाइल्ड है वो इस काबिल हो जाता है कि लॉजिक को अप्लाई कर सके, हैज़ ऑब्जेक्टिव रैशनल इंटरप्रिटेशंस, और चीज़ों को इंटरप्रेट कर सके. कॉन्जर्वेशन, नंबर्स, आइडियाज़, क्लासिफिकेशंस. यहाँ पे उसके पास नंबर्स भी हैं, कॉन्जर्वेशंस हैं, आइडियाज़ हैं, और उन सब को वो क्लासिफाई करने के भी काबिल होता है कि कौन सी चीज़ को कौन से ग्रुप में डालना है, और ये किस से रिलेटेड है. जैसे एनिमल्स हैं, जैसे बर्ड्स हैं, तो इन सब को वो क्लासिफाई करने के काबिल हो जाता है. एंड द लास्ट स्टेज 12 years टू एडल्टहुड, इसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहा गया. थिंक्स एब्सोल्युटली हाइपोथेटिकल आइडियाज, ब्रॉडर इश्यूज, एथिक्स, पॉलिटिक्स, सोशल और मॉरल इश्यूज एक्सप्लोर्ड. इसमें जो चाइल्ड है वो इस काबिल हो जाता है कि वो एथिक्स को जान सकता है, पॉलिटिक्स को, सोशो मॉरल इश्यूज जो हैं उनको एक्सप्लोर करने के काबिल हो जाता है. दिस इज़ द अदर एग्जांपल ऑफ पियाजेस स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. जो हमारा सेंसरी मोटर है उसमें सेंसेस को यूज़ किया जाता है, और जैसे यहाँ पे ये जो चाइल्ड है इसने ग्लास पकड़ा हुआ है, वो पकड़ने के काबिल है,
और प्री ऑपरेशनल में वो अगर पानी को सोचता है तो उसको पता है कि पानी, इस गिलास में जो पानी है ये वही पानी है जिसके बारे में वो सोच रहा है, चीज़ों को वो अंडरस्टैंड कर सकता है। कंक्रीट ऑपरेशनल में अगर देखा जाए तो ये दो तरह के गिलास हैं। अगर इससे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन से गिलास में ज़्यादा पानी है, हालांकि पानी एक जैसा ही दोनों में होगा, लेकिन क्योंकि इनकी शेप डिफरेंट है तो उसको यही लगेगा कि ये जो साइज़ में थोड़ा लंबा है इसमें पानी ज़्यादा है। ठीक है। और फॉर्मल ऑपरेशन में जो 12 ईयर्स तक जो हमारे चाइल्ड हैं वो इस काबिल हो जाते हैं कि अंडरस्टैंड कर सकें कि हाफ़ क्या है, फुल क्या है और एम्प्टी कितना है, और इन दोनों में से पानी किस में ज़्यादा है या दोनों में सेम है। कॉल्बर्ट्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। कॉल्बर्ट ने 6 स्टेप्स दिए हैं मॉरल डेवलपमेंट के, और 3 लेवल्स दिए हैं। लेवल 1 जो है प्री कंजर्वेशनल यंगर देन 6, ठीक है। 6 ईयर्स तक के जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे चाइल्ड हैं, उनके लिए है ये। स्टेप 1 में क्या है? पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। इसमें स्टेप 1 में जो हमारे चाइल्ड हैं, चिल्ड्रन हैं, वो उनके पास 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। या तो वो पनिशमेंट को समझते हैं या ओबे करते हैं, या पनिश लेते हैं या ओबे करते हैं, या कहना मानते हैं। तो उनकी ज़्यादातर कोशिश होती है कि वो रूल्स को ओबे करें ताकि उनको पनिश ना मिले। वो पनिशमेंट से बचने के लिए जो है वो काम करते हैं, और इसी तरह से उनकी मॉरल डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाती है। स्टेप 2 में वो कंफर्म टू गेट रिवॉर्ड एंड टू हैव फेवर्स रिटर्न्ड, ठीक है। वो रिवॉर्ड हासिल करना चाहते हैं और रिवॉर्ड हासिल करने के लिए वो काम करते हैं, वो अच्छा काम करते हैं, अच्छा बिहेव करते हैं। एट द स्टेप नंबर 3, गुड बॉय और गर्ल मॉरलिटी। जो बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं उनके अंदर गुड मॉरलिटी पैदा हो जाती है। कंफर्म टू अवॉइड डिसअप्रूवल और डिसलाइक बाय अदर्स। इस लेवल पे जो चिल्ड्रन हैं उनको इस चीज़ की फ़िक्र होती है कि दूसरे हमें डिसलाइक ना करें, नापसंद ना करें, इसलिए वो अपने आप को बेहतर करते हैं। गुड मॉरलिटी जो है उनके अंदर डेवलप हो जाती है। एंड एट द स्टेप 4, कंफर्म टू अवॉइड सेंसर बाय अथॉरिटीज़, ठीक है। अथॉरिटी से वो बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। एंड एट द लेवल ऑफ स्टेप 5, कंफर्म टू मेंटेन कम्युनिटीज़, एम्फेसाइज ऑन इंडिविजुअल राइट्स। यहाँ पे इंडिविजुअली वो अपने राइट्स को जान चुके होते हैं और अपनी एक कम्युनिटी को मेंटेन करते हैं, अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ अच्छा बिहेव रखते हैं। एंड एट द स्टेप 6 एंड द लेवल 3 पोस्ट कंजर्वेशनल 11 years, इंडिविजुअल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्शियंस। तो वो अपने कॉन्शियस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो इंडिविजुअली बनाते हैं। दिस इज़ द थर्ड theory of Erickson's stage of psychological development. साइकोलॉजिकली एरिक्सन के मुताबिक हमारे पास 8 जो हैं वो स्टेप्स हैं, 8 स्टेजेस हैं जिसमें हमारी जो है वो साइकोलॉजिकली डेवलपमेंट होती है। स्टेज 1 जो है उसको हम कहेंगे ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। इस स्टेज में या तो ट्रस्ट डेवलप होता है या मिसट्रस्ट होता है। इफ़ नीड्स आर डिपेंडेबली met, इन्फेंट्स डेवलप अ सेंस ऑफ बेसिक ट्रस्ट। जो हमारे पास इन्फेंट्स हैं उनके अंदर अगर उनकी बेसिक नीड्स सारी पूरी हो रही हों उनकी मदर की तरफ से या जो भी उनकी केयरिंग कर रहे हैं उनकी तरफ से,
तो उनके अंदर ट्रस्ट डेवलप होता है, और अगर ना पूरी हो रही हो तो उनके अंदर मिसट्रस्ट आ जाता है। सेकेंड स्टेज है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम और डाउट। या तो ऑटोनॉमी पैदा होती है या शेम और डाउट पैदा हो जाता है। टॉडलर्स लर्न टू एक्सरसाइज विल एंड डू थिंग्स फॉर देमसेल्व्स और दे डाउट देयर एबिलिटीज। या तो वो अपनी एबिलिटीज़ पे कॉन्फिडेंट हो जाते हैं अगर उनको मौके उस तरह के दिए जाएं, या वो शेमफुल हो जाते हैं और डाउटफुल हो जाते हैं अगर कोई कन्फ्यूजन रह जाए। एट द स्टेज ऑफ थर्ड, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। प्री स्कूलर्स, ठीक है, इस स्टेज पे स्टूडेंट्स को प्रिपेयर किया जा रहा होता है स्कूल के लिए, चिल्ड्रन को। एंड प्री स्कूलिंग लर्न टू इनिशिएट टास्क एंड कैरी आउट प्लान्स और दे फील गिल्टी अबाउट एफर्ट्स टू बी इंडिपेंडेंट। अगर वो हेल्प आउट किया जाए तो वो इनिशिएटिव लेने के काबिल हो सकते हैं, और अगर उनको हेल्प आउट ना किया जाए तो कोई भी इस तरह का अगर फैक्टर आ जाए तो उनके अंदर फिर गिल्ट पैदा हो जाता है। इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरियरिटी। चिल्ड्रन लर्न टू द प्लेयर ऑफ अप्लाइंग देमसेल्व्स टू टास्क और दे फील इन्फेरियरिटी। या तो वो अपने आप को अप्लाई करते हैं डिफरेंट सिचुएशन में और टास्क में, तो या फिर वो इन्फेरिटी में फील करते हैं। आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन। जो टीन एजर्स हैं इस लेवल पे, फिफ्थ स्टेज पे टीन एजर्स होते हैं, वर्क एट रिफाइनिंग अ सेंस ऑफ सेल्फ बाय टेस्टिंग रोल्स एंड देन integrating them to form a single identity, or they become confused about who they are। फिफ्थ स्टेप ऐसा स्टेप है जिसमें टीनेजर्स होते हैं और वो इस काबिल हो जाते हैं, या तो वो अपने आप की को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हु वी आर एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओवर देयर, हम इस दुनिया में क्यों आए, हमारे क्या मकसद हैं, हमारी लाइफ का क्या मकसद होगा, हमने किस तरह से प्लान करनी है। और अगर उनको ये क्लैरिटी नहीं होती तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। यंग एडल्ट्स स्ट्रगल टू फॉर्म क्लोज रिलेशनशिप एंड टू गेन द कैपेसिटी फॉर इंटीमेट लव, और दे फील सोशली आइसोलेटेड। सिक्स्थ लेवल पे या तो वो अपने आप को इंटीमेट कर लेते हैं और सोसाइटी में अपना एक नाम और मुकाम बना लेते हैं, और दूसरों के साथ उनकी जो है वो सोसाइटी में ताल्लुकात जो हैं वो अच्छे हो जाते हैं, या फिर वो आइसोलेट हो जाते हैं सोसाइटी से। जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। The middle age discover a sense of contributing to the world, usually through family and work, or they may feel a lack of purpose। ये वो लेवल है, ये वो स्टैंडर्ड है, ये वो स्टेज है जहाँ पे जो हमारे मिडल एज्ड लोग हैं उनके अंदर सेंस आती है कि उन्होंने कंट्रीब्यूट किस तरह से करना है वर्ल्ड में, दुनिया में अपना हिस्सा कैसे वो डालेंगे, फैमिली के साथ किस तरह से वो रह रहे हैं, फैमिली को कितना वो फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, या अपना काम जो है वो किस हद तक उन्होंने अचीव कर लिया, या वो काम में जॉब में अच्छे जा रहे हैं। अगर तो जा रहे हैं तो उनमें जनरेटिविटी होगी, अगर नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो स्टेग्नेशन में जाएंगे। इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। When reflecting on his or her life, the older adult may feel a sense of satisfaction or failure। अब ये जो लास्ट स्टेज है, ये वो स्टेज है जब हमारे जो लोग हैं वो जो है इस लेवल पे आ चुके होते हैं कि अपनी जॉब्स को कंप्लीट करके जो है अपनी लाइफ को स्पेंड कर चुके होते हैं। तो ऐसे लोग जैसे रिटायर्ड हो चुके हैं या उन्होंने अपना काम कंप्लीट कर लिया और अब वो फारिग हैं,
तो अब वो ये सोचेंगे कि अगर तो उनका लाइफ का जो उनका गोल्स थे वो अचीव हो गए, उन्होंने दुनिया में अपना हिस्सा जो है बेहतर तरीके से डाला, तो उनके अंदर इंटेग्रिटी आएगी और वो दूसरों को सिखाएंगे। अगर उनके कोई लाइफ में कुछ कन्फ्यूजन्स रहे हैं, गिल्ट रहे हैं, आइसोलेट रहे हैं वो, तो फिर वो डिस्पेयर की तरफ जाएंगे और फेलियर फील करेंगे। इन्फ्लुएंस ऑफ द पेरेंट्स ऑन देयर चिल्ड्रन। जो पेरेंट्स हैं उनका बहुत ज़्यादा जो है वो असर पड़ता है चिल्ड्रन की डेवलपमेंट पे, चाहे वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो सोशल डेवलपमेंट है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है या कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। ठीक है। द पेरेंटिंग स्टाइल इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन अक्रॉस चाइल्डहुड। Children who are socially responsible, competent, successful in school, and high in self-esteem belong to authoritative parents. Authoritarian style of parents, with its perfectionism, harsh discipline, and rigidity, affect children adversely. अगर स्टूडेंट्स जो हैं उनके अंदर सेल्फ़ एस्टीम है हाई, और सोशली वो रिस्पॉन्सिबल हैं, वो कॉम्पिटेंट हैं, सक्सेसफुल हैं अपने स्कूल में, तो इसके पीछे उनके पेरेंट्स की जो अथॉरिटेटिव है वो असरअंदाज होता है। आपका जो पेरेंटिंग स्टाइल है, आप जिस तरह से अपने चिल्ड्रंस को, अपने बच्चों को जिस तरह से आप लोग डील करते हैं, वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है आपके बच्चों के डेवलपमेंट पे। टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स। एडजस्टमेंट is defined as the ability of a person to be at peace through change in their बिहेवियर और थिंकिंग। ठीक है। एडजस्टमेंट का मतलब है कि आपके अंदर ऐसी एबिलिटी मौजूद होना कि आप वक्त के साथ या ज़रूरत के साथ अपने बिहेवियर में चेंज ला सकें, अपनी सोच को बदल सकें। उसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं दैट आर एनेक्सिटी, डिप्रेशन, एग्रेशन एंड फेयर। Now the unit number 2 is completed. I hope you can understand the topics, and if you have any question or any confusion related to this topic, you can write your question in the comment box. Thank you so much for watching this video lecture. अगर आप लोग बाकी लेक्चर्स की वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको सारे लेक्चर्स जो हैं वो मिल जाएं। थैंक यू सो मच।